All right, we are live. Let's start off with where we left. So, in the last class, in the very last moments, we had a discussion on some key functions. जो कि आपको पता होने चाहिए. We had this discussion on what string-related functions we can use and what the mod diff function was basically. How it kind of provided us with the remainder, how it provided us the quotient, and how can we basically make use of mod and diff in an example. जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को काफी अच्छे से समझाई थी. Today we are going to be basically continuing the same logic, same concept, and जो हमने सबसे पहले आज पढ़ना है, we are going to be continuing the functions, and उसके अंदर जो हमने third built-in function पढ़ना है ना, वो है round. राउंड फंक्शन का ये काम है कि इट्स द सेम मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ वाली बात. इफ यू गाइस रिमेंबर, आप लोग मैथ्स के अंदर राउंडिंग ऑफ करते हैं कि फॉर इंस्टेंस आई हैव दिस वैल्यू. I create a calculator where I have to ensure कि यार मेरा final answer is always to two significant figures. Okay, ये जैसे आपको पता है, I'm not sure if you know this or not, but I believe you need to give all your physics answers to two significant figures. सही. So अगर आपने 2SF के लिए एक physics के लिए आपने calculator बनाना है, and you might get an answer like 75.9764, but now you need to write the answer as what 75.98, right? अब ये जो हमें तो समझ आ गई कि आप इसको देखो, if it's greater than 5 round it up and stuff like that, but how can a computer deal with this scenario? So for a computer to deal with this scenario, हम क्या करते हैं, we make use of this round function, which basically takes two वैल्यूज. तो जो वैल्यूज ये लेते हैं ना, वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ ये जो भी चीज है ना, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन. ओके, दिस इज अ फंक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. बट अ फंक्शन ऑलवेज टेक्स सम वैल्यू. ओके, it takes some values, and in the world of computer science these values are basically known as parameters. So हम ले रहे कुछ specific type of parameters. अब जैसे राउंड वाला है ना, तो राउंड का syntax like you write the word round, then you open up the bracket, you write the name of the variable or the value. सही, आप इसके अंदर डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू कर देते एंड यहाँ पे आप प्रिसिशन लिख देते कि आपने कितने उस तक करना है. लाइक if I let's say want to convert maybe 10.987, so it's going to be like round 10.987 and I want to round it to two significant figures. Now this makes sense, but अब इससे जो मेरे पास आंसर आएगा वो आंसर कहाँ जाएगा? Definitely I need to ensure that the value is stored somewhere, right? So whenever I need to make use of the round function, मैं इसका आंसर जाके किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, maybe new. And new वेरिएबल के अंदर ये कैसे स्टोर होगा? I will be using this assignment statement. So इस तरीके से if I have some value, जो कि पीछे अगर मैं ये बोलूं कि new के एक वेरिएबल है, उसका नाम है num, and this variable num has the value 120.764, and now I want this to be total, like round off कर दो to two significant figures. So what I can do is कि मैं new के अंदर डाल दूंगा and I can make use of the round function round, and round के अंदर पहली जगह में मैं वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ num, and कितने significant figures 2. So जो हमारा 15 मार्क का क्वेश्चन होता है ना जो कि लोग यूजुअली बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काफी जो आसान क्वेश्चंस होते हैं दोज आर लाइक दिस, वेयर यू हैव टू काइंड ऑफ असाइन द वैल्यू. आपको पता है न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट में वो वैल्यू क्या बनेंगे एंड यू जस्ट प्लग इट इन. बट दोस बिग 15 मार्क का क्वेश्चंस, उनके अंदर जो सबसे बड़ा इशू ये होता है, दे नेवर गिव यू द वैल्यू. दे ऑलवेज टेल यू कि यार शायद हम इसके अंदर वैल्यूज बाद में डालेंगे, अभी यू नीड टू मेक अ जनरलाइज सॉर्ट ऑफ थिंग. तो जब मैंने जनरलाइज बनाना होता है ना, तो जनरलाइज में अंडरस्टैंड कि हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे. नाउ दिस नम कैन बी एनीथिंग. If I have to take input, it can be like 15.6, it can be 17.989 and stuff like that. So ये आपका एक फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, which is basically known as round, that is used for the purpose of rounding off. इसी तरीके से हमारे पास एक और वो भी है कि कभी कभार आपको बोल देते हैं कि राइट अ प्रोग्राम जो कि ना क्या कहते हैं, कोई रैंडम नंबर मुझे इशू कर दे. सो इफ आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम जिसके अंदर कोई रैंडम नंबर मुझे इशू हो रहा हो या कोई भी इस तरीके से, या फिर मैं ये बोल दूं कि भाई मुझे एक ना वो बनाना है हेड टेल कॉइन के कौन से होते हैं, हेड्स एंड टेल्स होते हैं, राइट, हेड्स एंड टेल्स. इसके मैंने एक प्रोग्राम बनाना है. अब वो किस तरीके से वी कैन इंश्योर कि यार आपके रैंडमली कोई नंबर जनरेट हो, इट कैन बी आइदर 1 और a 0, इन दोनों में कोई रैंडम वैल्यू जनरेट हो. तो उसके लिए व्हेनेवर इन ओ लेवल कंप्यूटर साइंस यू नीड टू रैंडमली randomly select a value between
दिस इज नाउ इम्पॉर्टेंट, ओके, बिटवीन 0 and 1, क्योंकि ये जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं ये आपको 0 and 1 में कोई एक वैल्यू असाइन कर देगा. यू नीड टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन, यू नीड टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन. समझ गए? अब होगा ये कि अगर मैंने इसको यूज करना है तो यूज ऐसे करोगे आप कि यू आर गोइंग टू बी राइटिंग इट लाइक, अब मैंने x एक वेरिएबल है, इस x वेरिएबल में आई वांट टू रैंडमली असाइन सम वैल्यू. तो इफ आई वांट टू रैंडमली असाइन सम वैल्यू टू इट, तो मैं करूंगा क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल बी जस्ट राइटिंग द कीवर्ड रैंडम एंड देयर यू गो, रैंडम, एंड आगे ये ब्रैकेट्स डालने हैं. दिस ब्रैकेट बेसिकली आप लोग बोल रहे होगे कि ये ब्रैकेट क्या करता है. दिस बेसिकली इज काइंड ऑफ अ इंडिकेटर फॉर अ फंक्शन. फंक्शन क्या है? फंक्शन को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप ये समझ लो कि फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्री रिटन कोड, एक ऐसा कोड जो कि पहले से लिखा हुआ है जिसको आप डायरेक्टली सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो. लाइक अभी मैंने रैंडम जब फंक्शन यूज कर रहा हूँ, डू यू थिंक मैंने इससे पहले रैंडम को कहीं पे खुद प्रोग्राम किया है? सॉरी, या आप खुद कहीं पे प्रोग्राम करते हैं? नो राइट, आप डायरेक्टली रैंडम यूज करते हैं, जो भी उसका प्री एग्जिस्टिंग कोड है वो फॉरन रन हो जाता है. दिस इज बेसिकली समथिंग जो कि फंक्शन कहलाई जाती है. अब दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शन इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ रैंडम फंक्शन. So it can always provide you a value between a 0 and 1, and ये multiple scenarios के लिए use हो सकता है. तो you should be aware of these 4 important functions: random, round, div जो हमने ऊपर पढ़ा था, and mod. से इसका आपको आइडिया होना चाहिए. Now we are basically going to be starting off with the most challenging part of chapter number 8 and 7, which is basically none other than arrays. अब जब आप पहली दफा वर्ड एरेज को सुन रहे होते हो ना, एंड आपको किसी भाई ने बताया, वो बहन ने, कि भाई मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी, तो दे विल टेल यू कि भाई 15 मार्कर के अंदर जो एरेज आते हैं ना, दोज आर वेरी डिफिकल्ट. बट दीज एरेज आर नॉट दैट मच कम्प्लेक्स द वे इट सीम्स. व्हाई? बिकॉज एरेज के अंदर ना एक खासियत है. अब एरेज होता है ये कि लाइक मुझे एक बात बताओ, मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ, लेट्स से, and the class has for instance 30 students. Class equals to 30 students. अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई मुझे हर 30 बच्चों का नाम स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? If I want to store the name of every kid that is enrolled in a class, मैं कैसे करूंगा? I need to definitely include some variables जिनके अंदर मैं उनका नाम रख लूं. अब ये करूंगा मैं कैसे? या अगर 30 को थोड़ा रिड्यूस कर ले, हम ये बोल देते कि लेट्स से 5 करना है, तो किस तरह करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि वेरिएबल के अंदर S21 स्टूडेंट 1, STU2, STU3 एंड सो ऑन, राइट. इसके अंदर आप डाल दो मनाल, इसके अंदर आप डाल दो फॉर इंस्टेंस अहमद, इसके अंदर आप डाल दो रियान से. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि भाई यार हमारे पास सिनेरियो ऐसा है कि वी आर स्टडीइंग इन अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी वेयर वी हैव लाइक काइंड ऑफ 250 स्टूडेंट्स. अब 250 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में इनरोल्ड है, तो क्या ये 250 अलग अलग वेरिएबल्स बनाना, फिर इनमें याद रखना कि अहमद कौन होगा, मनाल का क्या होगा, रियान का क्या होगा, वुडंट दैट बी वेरी चैलेंजिंग? इट विल बी, राइट. सो वी ब्रिंग इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. किस तरह सॉल्व करते हैं? लाइक हम एक काम करते हैं, rather than creating multiple sort of variables, why not हम एक काम करते हैं कि हम इस तरह बनाते हैं एक टेबल, हम बनाते हैं टेबल. एंड इस टेबल का काम ये होगा कि इट इज बेसिकली गोइंग टू बी स्टोरिंग वैल्यूज. एक इस तरह हमारे पास टेबल है, एंड इस टेबल का सिर्फ एक ही टास्क है, वो ये कि यार ये ना नाम स्टोर कर रहा होगा. लाइक अगर मैं इसको अपने इस टेबल को नाम दे दूं क्लास, या क्लास भी स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसमें बोलूं कि ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की, अगर आप लोग के घर में शेल्फ्स बनी हो, कंसिडर दिस काइंड ऑफ अ शेल्फ. अब ये मेरे पास एक शेल्फ बनी हुई है. अब शेल्फ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डब्बे होंगे, राइट. बट अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज योर रूम, मे बी माई रूम शेल्फ, माई रूम शेल्फ, जहां पे मैं बुक्स रखता हूं, तो आई डू नॉट नीड अ सेपरेट शेल्फ फॉर अ सिंगल बुक, राइट. उसी के अंदर मैंने इस तरह कर दिया, आई मेड 5 सेक्शंस. इसके अंदर मैं पहले वाले में लेट्स से इकॉन रिलेटेड चीजें रखता हूँ, दूसरे में सीएस रिलेटेड करता हूँ, तीसरे में लेट्स से फिजिक्स रिलेटेड करता हूँ, देन केम रिलेटेड करता हूँ, मैथ्स, एंड मे बी आखिरी तुम कर लो लेट्स से बिजनेस रिलेटेड कर दिया. अब आई एम स्टोरिंग मुख्तलिफ किस्म के बुक्स विद इन मुख्तलिफ किस्म के डब्बे, एंड ये सारा का सारा सीन कहाँ पे? ये एक ही रो के अंदर हो रहा है, विच इज बीइंग नोन एज स्टूडेंट्स, राइट. या फिर अगर इसको मैं बोल दूं माई शेल्फ,
बोलने का यहाँ पे मकसद ये है कि अभी आप बोल रहे होगे कि सर ये क्या हो रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह का कोई सिनेरियो बना लूँ कि वेयर अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं, तो अगर मैं कोई इस तरह का सीन कर दूँ कि माय स्टूडेंट्स एक ही वेरिएबल हो एंड उसी वेरिएबल में आई काइंड ऑफ शो मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि अभी मेरे अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ माय स्टूडेंट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर मैं डाल दूँ मास, राइट? ये मैं स्टोर कर सकता हूँ, आई कैन स्टोर दिस। बट व्हाट इफ आई आल्सो वांट टू इंक्लूड स्टूडेंट के अंदर सैफुल्ला? अब आई कैन नॉट डू दैट, व्हाई? बिकॉज द मोमेंट आई एंटर सैफुल्ला, मास को रिप्लेस कर देगा। सो अगर मैं कोई इस तरीके से चीज बना लूं कि जहां पे मैं स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू की जरूरत भी मुझे ना पड़े एंड वो ऑटोमेटिकली एक मेरा इस तरह का वो बन जाए जिसके अंदर मैं बारी बारी इस स्टूडेंट वेरिएबल जो ये मेरा वेरिएबल है विच माइट बी काइंड ऑफ समथिंग लाइक अ बिग बॉक्स, राइट? अब ये एक वेरिएबल है विच माइट बी अ वेरी वेरी बिग बॉक्स एंड दिस बॉक्स वाज ओरिजिनली ओनली स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ मास, सही। बट नाउ व्हाट आई डू इज कि हम ये कहते हैं कि यार ये जो हमारे पास इतना बड़ा वो बना हुआ है, क्या नाम है, वेरिएबल के लिए जो जगह बनी हुई है, इसको हम स्प्लिट करें। अगर हम इसको स्प्लिट करें, मे बी हम इसको इस तरह मुख्तलिफ सेक्शंस में स्प्लिट कर दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 राइट, एंड हर सेक्शन एक बंदे का नाम स्टोर कर सके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एरे। किस तरह? मे बी हम यहाँ पे मास का नाम लिख दें, यहाँ पे मैं रेहान का नाम लिख दूँ, यहाँ पे मैंने मनाल का, यहाँ पे अहमद का, यहाँ पे सैफुल्ला का, यहाँ पे लेट से मैं बोल दूँ उस्मान का डाल दूँ। तो इस तरीके से अगर मैंने ये मुख्तलिफ नाम डाल दिए, इसको भी एम कर दो, तो अब ये क्या हो रहा है? एक ही स्लॉट है, एक ही स्लॉट है, राइट? एक ही स्लॉट है, दिस इज वन स्लॉट एंड उसी स्लॉट को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया सेक्शंस के अंदर। अब इस स्लॉट का नाम क्या है मुझे ये बताओ, इस स्लॉट का नाम क्या है? दिस होल टेबल, दिस होल रो, इसका नाम क्या है? इट इज स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि वही स्टूडेंट वेरिएबल जो कि इतने बड़ी थी उसको मैंने हिस्सों में ब्रेक कर दिया एंड नाउ हर हिस्से के अंदर एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डेटा स्टोर्ड है। कंसिडर इट काइंड ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाई नॉट हम ये बोल दे कि मेरे पास स्टूडेंट एक इस तरह का टेबल मैंने बना दिए या एक शेल्फ रो वाली बना दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ शेल्फ्स है, हर शेल्फ के अंदर एक सॉर्ट ऑफ डेटा है। बट नाउ अब मुझे ये तो पता लग गया कि यार इसके अंदर ये नाम तो स्टूडेंट्स है, बट अगर मैं इसको आउटपुट करना चाहूँ कि यार इसमें रेयान को मैंने आउटपुट करना है, तो मैं रेयान को कैसे आउटपुट करूंगा? मैं कैसे आउटपुट करूंगा? उसके लिए होता ही है कि योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जब हम इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ना, वो हर शेल्फ नंबर को एक नंबर असाइन करता है। लाइक ये एक शेल्फ बन गया, 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 राइट? हर शेल्फ का एक स्पेसिफिक नंबर है विच इज देन यूज टू एक्सेस दैट डेटा। लाइक अगर मैं ये बोलूं कि आई नीड टू गेट मास, तो दिस माइट बी, अगर कंप्यूटर का पहला, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी बहुत स्टार्ट में कि कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, फर्स्ट वैल्यू इज जीरो एंड देन इट गोज ऑन। सो लाइक जो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है ना, सबसे पहले वैल्यू इस स्टूडेंट के अंदर, दैट इज जीरो, देन इट इज वन, देन इट इज टू, थ्री, फोर, फाइव। सो नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस मास, व्हाट आई कैन डू इज मैं इसी नाम स्टूडेंट के साथ लिख दूं स्टूडेंट एंड देन आई कैन ओपन दिस ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के अंदर मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू को लिख दूं, लाइक स्टूडेंट जीरो। अब स्टूडेंट जीरो होता क्या, ये बोलेगा कि ओके आप देखना चाह रहे हो कि देयर इज दिस बिग वेरिएबल स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के अंदर एक आपने हिस्से बनाए, उसमें जो जीरो नंबर वाला हिस्सा है ना, उस डेटा को आप बाहर निकाल दो। तो इफ आई डू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, यू विल सी कि आई गेट द वर्ड मास ऑन द स्क्रीन। Why? Because it is at position number 0 of this whole big table. Just like that, अगर मैं ये बोलूं स्टूडेंट नंबर 1, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आप जाके चेक करो कि भाई पहला स्टूडेंट कहाँ पे है। पहला स्टूडेंट अब 0 1 2 3 आपका पहला स्टूडेंट ही हो गया जो कि आर है, काइंड ऑफ हम इसको रिजेंबल करें एज रियान। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आ गया? वी गॉट रियान। देन लेट्स से हमने करना है ये एस, सैफुल्ला को मैंने करना है। सो इस सैफुल्ला को अगर मैंने प्रिंट करना है तो व्हाट विल आई डू, मैं करता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट में किस पोजीशन के ऊपर सैफुल्ला स्टोर्ड है? 0 1 2 3 4, राइट? इट्स स्टोर्ड ऑन द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ इंडेक्स। अब ये जो मैं इसके सिंटेक्स है ना, वो ये है कि हम काइंड ऑफ डील कर रहे हैं, इधर अगर मैं लिखूं आप लोग के लिए, यहाँ पे लिख दूं, द सिंटेक्स इज बेसिकली वी आर मेकिंग यूज ऑफ वेरिएबल नेम, वेरिएबल या फिर एरे, एंड ब्रैकेट के अंदर हम उसके इंडेक्स करें। अब व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स इज बेसिकली पोजीशन, कि उसके पोजीशन क्या है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिंटेक्स यू नीड टू फॉलो। कि अब मैंने अगर सैफुल्ला का करना है तो आई नो कि सैफुल्ला हैज अ इंडेक्स ऑफ 4, तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट आई विल बी गेटिंग सैफुल्ला ऑन स्क्रीन। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट आई विल बी गेटिंग सैफुल्ला ऑन स्क्रीन। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट आई विल बी गेटिंग सैफुल्ला ऑन स्क्रीन।
and this is how it works. Now I want you guys to tell me quickly in the chat box, क्या आपको ये समझ आई है जो मैंने यहाँ पे एक बड़े वेरिएबल को स्प्लिट किए पार्ट्स के अंदर, एंड हर पार्ट को एक्सेस करने के लिए हम 0 1 2 या इस तरह उसके इंडेक्स को यूज करें, जो अभी एग्जांपल दिए, डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्विकली, perfect, Rehan. Manal, do you get it? Yes, Manal. Do you have a question? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब ये हमने ये एक देख लिया कि ये एक बहुत छोटा सा सिनेरियो मैंने आपको बताया। इसका मकसद ये है कि यार इफ आई हैव दिस वन बिग प्रॉब्लम कि भाई मैंने स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करना है, आई हैव अ क्लास ऑफ मे बी 50 स्टूडेंट्स, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट 50 सेपरेट, नो कैपेसिटी या दिल का जोर टू क्रिएट 50 सेपरेट, create 50 variables. So what I can do is I can create one array. So I create an array and store names of students at each index. अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये नहीं करूंगा कि आई विल हैव अ वेरिएबल विद स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इंशाल्लाह हो जाएंगे, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 एंड सो ऑन। बट अगर मैं इस तरह मैं वेरिएबल के नाम को अलग अलग करूँ ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट दिस अलाउज मी टू डू अप हियर इज व्हाई नॉट क्रिएट अ एरे। मैं एक एरे बना देता हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, एंड उस स्टूडेंट नेम के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एट पोजीशन नंबर 0 जो कि बेसिकली फर्स्ट पोजीशन है, नाउ काउंटेड अप एज अ टेबल, राइट। हम इस तरह की एक वो बना रहे हैं, इस तरह का हमारे पास एक वो बनता है, यू कैन से हमारे पास एक वो बन रही है टेबल, एंड उस टेबल के अंदर वी कैन काइंड ऑफ हैव वैल्यू स्टोर। अब ये एक स्टैक वाला वो है मॉडल, आपको स्टैक इन चीजों का पता नहीं होना चाहिए, बट दिस इज हाउ योर वन एरे लुक्स लाइक। इसके अंदर दिस इज पोजीशन 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। नाउ इफ आई वांट टू ऐड स्टूडेंट नेम 0 के अंदर अ लेटर आर, तो ये आर कहाँ जाएगा, दिस आर इज गोना गो अप हियर। देन मैं बोलता हूँ कि यार क्लास में जो फोर्थ स्टूडेंट है ना, फोर्थ स्टूडेंट विच इज लाइक स्टूडेंट नेम्स के अंदर आपने जो फोर्थ नंबर रोल नंबर है ना किसी बच्चे का, दैट इज बेसिकली एस, सैफुल्ला वाला। तो हम ये जब इस स्टेटमेंट को रन करेगा ये बोलेगा क्या, ओके आपने स्टूडेंट नेम एक कोई है टेबल सी चीज, आप उसमें जाओगे उसके अंदर जो फोर्थ, यार आई एम इनटू कंप्यूटर साइंस इंशाल्लाह, सो कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, क्वांटम स्टफ लाइक दैट। सो अब मेरा स्टूडेंट नेम्स है, सही है, इसके अंदर आई हैव टू गो एट पोजीशन नंबर 4। अब मैं देखूंगा 0 1 2 3 4, ओके पोजीशन नंबर 4, उधर मैंने क्या स्टोर करना है, एस यहाँ पे आ गए। जस्ट लाइक दैट अगर मैं ये बोलूं स्टूडेंट नेम्स 2 के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, मे बी एम, तो अब इसका क्या होगा, द मोमेंट दिस इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड तो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर एम आ जाएगा, एंड लेट्स से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्टार आ गया एंड यहाँ पे हैशटैग आ गया। अब ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन अगर मैंने 50 बच्चों का करना है, 50 बच्चों का, ये तो 3 4 बच्चों का आसानी से हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट 50 स्टूडेंट्स? अगर मैं 50 बच्चों का ये करना है तो दिस डेफिनेटली मीन्स कि यार ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। व्हाई विल इट गेट डिफिकल्ट? बिकॉज इट्स गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट कि यार अगर मैं हर स्टूडेंट का वो करूँ स्टूडेंट नेम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक यूज ऑफ अ लूप। किस तरह? आई कैन से कि यार हम ना 50 बच्चों का नाम इनपुट कर रहे हैं, एंड पहला बच्चे का जाएगा स्लॉट नंबर 0 के अंदर, दूसरे बच्चे का जाएगा स्लॉट नंबर 1 के अंदर। लाइक इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्लॉट्स है, दिस स्लॉट गोज अप टिल लाइक 50, ओके। ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया 50 तक जाता है। सो हमारे पास एक बच्चा है स्लॉट नंबर 0 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, बारी बारी। बट ना अगर ये 50 बच्चों के लिए मैंने कंटिन्यू करना है तो इसको से फॉर काउंट, एंड काउंट के अंदर मैं क्या डालूंगा 1 to 50, मतलब एक से आपने जाना है 50 तक ना, इट कैन बी 1 to 50 और इट कैन ऑल्सो बी व्हाट 0 to 49। अगेन आई डिड एक्सप्लेन विद अ कमेंट, ये कमेंट है, ओके। लेट मी चेंज द कलर, ज्यादा समझ आएगी। दिस इज अ कमेंट,
या आई कैन ऑल्सो डू इट 0 to 49, इट्स द सेम थिंग। अगर हम 0 को काउंट करते हैं 49, अगर हम 1 to 50 करते हैं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट विल नॉट बी 0, रिमेंबर। अगर मैं 1 to 50 करता हूँ ना, तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बिकम एज 1, and then 2, and then 3, and then 4, and then 5. But if I kind of count the first element of my computer to be 0, तो it's going to go from 0 to 4. ये एक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कब 0 to 49 होगा, कब क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये ओवर टाइम आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगी। बट अगर मैं काउंट 1 to 50 यूज कर रहा हूँ, अब अगर मैंने ये करना है, मैंने सबसे पहले लेना है इनपुट, राइट, इनपुट नेम, कि यार बच्चे का नाम, तो कंप्यूटर को बताओ किस बच्चे का वो नाम स्टोर करना है। एंड फिर आपने क्या करना है, हमने ये सबको स्टोर किधर करें, हम स्टोर करें स्टूडेंट नेम। लेकिन स्टूडेंट नेम के अंदर अगर मैं डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं, फिर तो जब भी मैं नेक्स्ट काउंट लूंगा, अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, स्टूडेंट नेम के अंदर नेम, एंड देन आई से कि यार यहाँ पे आप कर दो नेक्स्ट काउंट, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस कोड? द प्रॉब्लम अप हियर इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम अप हियर इज कि यार अगर यहाँ पे ओरिजिनली स्टूडेंट नेम के अंदर वैल्यू आ जाती है नेम की मास, तो द लूप इज गोइंग टू रन 50 टाइम्स। द नेक्स्ट टाइम यू टेक इनपुट ऑफ लेट्स से 7, तो स्टूडेंट नेम के अंदर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, बट द मोमेंट 7 कम्स अप, मास को रिमूव कर दिया जाता है। 7 के ऊपर इब्राहिम आ जाए तो फिर 7 को रिमूव कर दिया जाता है। बट व्हाट आई वांट इज कि यार ये वैल्यू डिलीट ना हो, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो स्टूडेंट नेम का वेरिएबल है ना, इसको अगर मैं अपने हिस्सों में डिवाइड कर दूं, जिस तरीके से मैंने ऊपर आपको बताया कि यार एक बड़ा वो है, उसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस स्टूडेंट नेम वाले वेरिएबल को भी अगर मैं इक्वल पार्ट्स में कर दूं, उसके लिए कर ये सकता हूँ कि आई कैन स्पेसिफाई कि यार मैंने किस उसके अंदर इसको लेकर जाना है। किस तरह? मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये स्टूडेंट नेम है, अगर स्टूडेंट नेम के जो 0 पोजीशन है ना, उसके अंदर आपने पहले नाम डाल देना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो हर टाइम 0 होगा, फिर 0 अपडेट होगा, 1 2 3 ये 50 तक किस तरह जाएगा? तो उसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें तो पता है कि लाइक अगर मैंने पहले बच्चे का नाम स्टोर करना है, तो मैं कहाँ स्टोर करूंगा? आई विल स्टोर इट इन लाइक स्टूडेंट 0, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग फर्स्ट किडो। Now this can be 0 या this can also be 1, लेकिन again based upon your decision अब फिर आपके आगे कोड में भी differences आएंगे। Like अगर मैं यहाँ पे student 1 लेता हूँ, तो I need to go from 1 to 50, but if I take this as 0 student 0, तो I need to make sure the loop is from 0 to 49। So इस तरह के differences आपको पता होने चाहिए। So अब यहाँ पे first kid है, फिर अगर मैं करता हूँ student 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया second 2D बोलो, this comes up as second kiddo, second kiddo। फिर अगर मैं थर्ड करना हो, तो आई कैन डू लाइक स्टूडेंट एंड देन आई कैन राइट द वर्ड 3 एंड दिस विल बी बेसिकली थर्ड बच्चा। बट नाउ अब यहाँ पे तो मैं 1 2 3 खुद चेंज करूँ। वट एवर अगर मैं लूप के अंदर जा रहा हूँ, तो लूप के अंदर अगर आप देखो हमारे पास ऑलरेडी एक काउंट चल रहा है, जिसकी पहली वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, देन इज गोइंग टू गो 2 3 एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पे ना काउंट का नाम डाल देते हैं, काउंट, and then I close this bracket. This basically means कि count is going to be 1 to 50, right? Now if I create a table like the above one, अगर मैं इसी को copy करूँ, how do you copy it? You copy it this way, right? हमने ये कॉपी कर दिया, एंड नाउ लेट्स मेक श्योर कि इसको अगर हम थोड़ा सा एम्प्टी कर दें साइड पे, तो हमें पता है एक दो चीजों का लग रहा है। एक तो मुझे ये पता लग रहा है कि यार इसका जो इंडेक्स है दैट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 0, सो आई कैन रिप्लेस द इंडेक्स बिकॉज वो तो ऊपर एग्जांपल के लिए दी। अब इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन इट्स 2, देन इट्स 3, देन इट्स 4 एंड देन इट्स फाइनली 5। अब हमारे पास ये 5 इंडेक्सेस तो आ गए। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, हाउ इज इट गोना वर्क? सबसे पहले वो बोलेगा इनपुट नेम, लेट्स से आई इनपुट नेम द मास। काउंट के अंदर क्या वैल्यू है? काउंट के अंदर क्योंकि इट्स द फर्स्ट वेरिएबल, सो काउंट के अंदर वैल्यू विल बी 1, राइट? सो काउंट के अंदर जब वैल्यू 1 आ गई, काउंट के अंदर 1 आ गई, नाम मैंने इनपुट कर दिया, तो स्टूडेंट नेम पोजीशन नंबर 1, दिस इज आल्सो योर पोजीशन, ओके? पोजीशन इन एरे, पोजीशन इन एरे। सो अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये क्या होगा? उसके अंदर मास आ गया। सो 0 सॉरी 1, तो 1 वाले नाम पोजीशन पे आ जाएगा मास। फिर नेक्स्ट काउंट, काउंट की वैल्यू क्या हो गई? इट बिकम्स 2। सो नाउ इनपुट करते हो आप नाम, लेट्स से रेयान। अब रेयान का नाम कहाँ पे स्टोर होगा? काउंट के कुछ नंबर पे 2 पे, क्योंकि 1 से वो 2 हो गया। सो काउंट 2 पे अब आ गया रेयान। फिर मेरे पास लेट से आ जाते हैं मनाल। मनाल किस तरह आएगी? मनाल का यही होगा कि काउंट बढ़ जाएगा एक से ज्यादा 3, एंड देन इट इज गोइंग टू बी लाइक अपना नाम इनपुट करो, एंड फिर आपने उस नाम को पुट करना है स्टूडेंट नेम के सेक्शन नंबर 3 के अंदर, जो कि मनाल आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे लेट से इब्राहिम आ गया, एंड फाइनली वी हैव अहमद।
बल्कि इब्राहिम की जगह हम वी कैन डू सैफुल्ला। तो हम ये तरीका बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। माई स्क्रीन इज नॉट शोइंग, इज इट नॉट? गाइस कैन अदर्स कंफर्म टू? लेट मी रीशेयर। नहीं नहीं यार, इब्राहिम इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हियर इन यूनिवर्सिटी, तो बस उसका नाम आ जाता है जहन में। ओह यस। सो अब ये क्या हो रहा है, मैं नाम को स्टोर कर रहा हूँ इन एरे। अब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि मेक अ प्रोग्राम जो कि 50 बच्चों के नंबर मार्क्स ले एंड उसको स्टोर कर रहा हूँ एक एरे के अंदर। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मेरे पास क्लास में है 30 बच्चा, मेरे पास क्लास में है, या बल्कि मैं ये बोलूँ कि मैं एक बिजनेस सीईओ हूँ एंड मेरे ये कंपनी के अंदर है 20 एम्प्लॉयज, लेकिन इन 20 एम्प्लॉयज का आई कंडक्टेड अ टेस्ट, सही है। And then now I want to store their marks, but I want to store their marks in a single place. I don't want to ensure कि यार मैं ये बोलूँ कि employ 1 marks, employ 2 marks, employ 3 marks, employ 4 marks. I don't want to give that feeling. So how can I make sure कि मैं 20 employees को वो करूँ? So इसके लिए हम कर सकते हैं ये कि we can create an array. हम बनाएंगे एरे। बट जस्ट लाइक बिफोर, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम क्या कहते हैं, कोई वेरिएबल या कोई डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करते कोडिंग में, वी ऑलवेज डिक्लेयर इट। सही, वी ऑलवेज डिक्लेयर इट। सो हाउ डू यू गाइस डिक्लेयर एन एरे? सो एरे की दो टाइप्स आती है हमारे पास। एरे इज बेसिकली वन डायमेंशनल, एक हमारे पास होती है 1D एरेज, एंड देन हमारे पास एक ऊपर ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे एरेज। इसके दो टाइप्स, एक हमारे पास आते हैं 1D एरे, एक हमारे पास आते हैं 2D एरेज। द वन विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज बेसिकली 1D एरेज, विच मींस कि यार एक डायमेंशन में। सो इफ यू लुक एट दिस, दिस इज बेसिकली अ 1D एरे बिकॉज इसके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। यहाँ पे भी इट्स 1D एरे क्योंकि डेटा इज ऑल स्टोर्ड इन वन मैनर। But now, how do you declare an array? That's the main point, and it is very very important कि आपको पता हो array किस तरह करते हैं। Now, definitely, I need to give the array some sort of name, right? But अब मैं उसका नाम इस तरह दूंगा कि जब मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, मैं उसका नाम बताऊंगा, मैंने बताना है उसका साइज क्या है, एंड मैंने बताना है कि यार ये जो डेटा इसके अंदर स्टोर होगा ये किस टाइप का होगा। सो याद रखना, योर एरे इज ऑलवेज गोइंग टू स्टोर डेटा ऑफ द सेम टाइप। सही है, ऑलवेज stores data of the same type। सही। अब अगर मैंने ये करना है कि मैं एक एरे बनाता हूँ जिसको मैंने वो करना है, तो ये मैं करूंगा कैसे? सबसे पहले तो मैं वही जैसे नॉर्मल, आपको याद होगा मैंने बताया था, वी नीड टू यूज द कीवर्ड डिक्लेयर। सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक डिक्लेयर। फिर अगर मैंने डिक्लेयर के बाद लिखना है उस एरे का नाम, जो कि इस सिनेरियो में मैंने क्या दिया था, स्टूडेंट्स। सो डिक्लेयर स्टूडेंट्स, एंड डिक्लेयर स्टूडेंट्स के बाद आप डालोगे एक कॉलन। नाउ यू नीड टू राइट द वर्ड एरे, क्योंकि हम बताएंगे कि वी वांट टू क्रिएट एरे। दिस इज हाउ यू डिक्लेयर एरे। अब आपके एरे का क्या साइज होगा? नाउ इफ यू लुक अप हियर, योर एरे इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट्स गोइंग अप टू 5। सो योर एरे साइज शुड बी लाइक 1 2 5, राइट? सो अगर मैंने एरे के साइज को डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई यू नीड टू क्रिएट एन एरे जो 1 से स्टार्ट हो एंड 5 तक जाए। सो 1 5। और I can also kind of do it in a one other way, जिसके अंदर I can write it like this array array। sorry for that man, तो मैं आज सोया बहुत कम हूँ। Oh wow, congratulations Rayan on becoming the head boy, wow, perfect। So now if I want to, let's say इसके अब मेरे पास लेंथ क्या है, it is 1 से 5 तक, so 1 से 5 तक ही हो गया। एंड इसी तरीके से अगर मैं इसको एरे 1 to 5 कर दूं, तो फिर मैंने इसके बाद दिखने बताना है कि ये इसके डेटा टाइप क्या होगी, तो इट विल बी ऑफ इंटीजर। विल इट बी इंटीजर? टेल मी। No, it won't be integer. Why? Because it is making use of strings। ये हमारे पास जितनी ये नाम स्टोर हो रही है, ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं? इट इज बेसिकली बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट? क्योंकि ये टेक्स्ट है, so ये स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। so हम यहाँ पे लिख देते ऑफ स्ट्रिंग।
यार आई हैड वन मिड टर्म टुडे एंड वन क्विज, जिसकी वजह से मैं काफी लेट सोया था। स्ट्रिंग, बिल्कुल बिल्कुल रियान, परफेक्ट। सो अब मैंने क्या किया, आई डिक्लेयर्ड एन एरे जो कि जिसका साइज होगा 1 से 5 तक। जब मैं इस वैल्यू को देखूं 1 से 5, तो मेरे जहन में एक टेबल आ जानी चाहिए जिसके अंदर सबसे छोटा जो पहला एलिमेंट होगा ना, दैट विल बी 1, एंड जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा आखिरी, दैट विल बी बेसिकली 5। सो अगर मैं इसको अपना थोड़ा सा जनरलाइज मेथड में लिखूं ना, तो इट इज काइंड ऑफ, यू राइट डिक्लेयर, and after declare you write the keyword name, then you have colon, then you write array starting, ending of data type. This is basically how you kind of write and declare an array. Now अगर मैंने एक array बना दिया स्टूडेंट मार्क्स के बारे में, स्टूडेंट एम, नाउ आई आस्क यू कि ब्रो एक कोड लिखो जो कि मुझसे 50 बच्चों के नेम इज आल्सो स्ट्रिंग, या एनीथिंग जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स आर बीइंग रिटन एट द सेम प्लेस इज बेसिकली नोन एज स्ट्रिंग, राइट? सो अब मैंने अगर ये एरे के अंदर ये आपको बोल दिया कि भाई मुझे कोड लिख कर दो जो जिसका काम ये होगा कि आपने देखना है कि हर बच्चे के मार्क्स आप इनपुट कराएं, एंड हमने उससे एरे के अंदर डेटा डालना है। अब ओरिजिनली जब मैं डिक्लेयर करता हूँ ना, तो इसको अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो इससे होगा ये कि आई विल हैव अ एम्प्टी बॉक्स लाइक दिस, बट इट विल बी एम्प्टी, राइट? एम्प्टी बन गया जिसका नाम होगा व्हाट, स्टूडेंट एम। इट विल हैव द नेम ऑफ स्टूडेंट एम, एंड स्टूडेंट एम के अंदर हम देखते हैं कि वी हैव मल्टीपल प्लेसेस जिसके अंदर दिस वन इज पोजीशन नंबर, अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है सो दिस इज पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी काइंड ऑफ हैव 6 पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, सो दिस मींस व्हेन वी वांट टू ऐड डेटा we need to populate it, we need to populated, and how do I populate it? Populate का ये मतलब है कि मैंने अब ये बना दिया, now I want कि यार we are given holidays to go home in December, end of like in early January. नहीं यार, not on weekends, not on weekends, I don't have time to go to home during weekends, काफी काम है यहाँ पे। So अब यहाँ पे अगर if I want to add data into this खाली, this is empty at this moment, right? This is what, this is empty, but I now want to add data। अब इसके लिए मैं कोड किस तरह लिखूंगा, ऊपर मैंने डिक्लेरेशन कर दी, now I will be like okay इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, 6 है, so why not make use of a for loop, for count, and then it is going to run from what, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है तो I will be like 1 2 आखिरी एलिमेंट 6, बट इफ इट वाज 0 तो मैंने फॉर काउंट 0 से चलाना था। नाउ आई विल बी लाइक इनपुट योर मार्क्स, इनपुट मार्क्स। अब ये पहला बच्चा अपना मार्क्स मुझे बताएगा जो कि सीधा जाएगी आपके स्टूडेंट एम वेरिएबल के अंदर। तो हम ये बोल देते हैं कि स्टूडेंट एम जो मेरा एक एरे है उसके पोजीशन नंबर 1 जो कि पहला बच्चा है, क्योंकि पहले बच्चे ने नंबर दिया, तो स्टूडेंट एम के फर्स्ट उसके अंदर आपने डायरेक्टली डाल देना है मार्क्स, एंड देन अगेन यू राइट नेक्स्ट काउंट, which basically ensures कि यार आपका ये सब का सब अच्छे से चल रहा है, एंड ये फिर रिपीट होगा क्योंकि आप वो दूसरे फिर से इनपुट लेगा, देन इट विल बी लाइक स्टूडेंट काउंट के 1 नहीं, माय बैड आई डिड दिस रॉन्ग, इट इज बेसिकली स्टूडेंट काउंट के काउंट। सो यहाँ पे आ गया काउंट, क्या आपका जो भी काउंट चल रहा है उस स्पेसिफिक उसका उसके स्पेसिफिक पोजीशन में आप जाएं तो गुड सीन हो जाए। सर अगर आप टेस्ट या टर्म फेल गए तो कुछ होता है? यस यस होता है, आपको रिपीट करना होता है, सही है सारा का सारा। तो अब ये इस तरीके से अगर मैं करूं एंड इसके अंदर मैं आपको बोलूं कि ब्रो नाउ आई वांट टू इनपुट द मार्क्स, लेट्स से इसको हम टेस्ट करते हैं 60 72 8 40 99, हाउ विल आई इनपुट ऑल दिस? सो इट इज बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फॉर काउंट 1 to 6, मैं इनपुट कर दिया 60। अब स्टूडेंट एम जो कि मैंने ऊपर एक एरे डिक्लेयर किया था ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट एम, उसके काउंट जो कि पहले पोजीशन है 1, सो स्टूडेंट एम के 1 पोजीशन जो कि स्टूडेंट एम ये वेरिएबल है एरे है, इसका जो पोजीशन नंबर 1 है विच इज बेसिकली दिस, उसके अंदर आप मार्क्स को स्टोर कर दो जो कि हमारे पास 60 था। फिर यही इट रिपीट्स एंड देन आई सी 72, देन आई सी 80, देन आई सी 99, एंड अब आप देखते हो कि इसके अंदर 40 कहीं नहीं है। अब ये 40 कहाँ गया? व्हाट इफ ये 40 जो हमारा है ना, इसने हमारी कोई कंडीशन मीट ना की हो,
मतलब अगर इसको मैं फर्दर कोई कंडीशन इसके अंदर डाल दूं कि मे बी कोई इस तरह की चीज़ हो रही है या इस तरह की चीज़ हो रही है, तो अगर वो फुलफिल नहीं होती तो इट्स नॉट लाइक कि जो वैल्यूज़ मैं इनपुट करूँगा वो सारे के सारे होंगे। डेफिनिटली उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू सब कुछ नहीं जाता। एंड दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ राइट कोड व्हेन यू वांट टू ऐड डेटा इनटू एन एरे। नाउ आई वांट यू गाइस टू क्विकली टेल मी कि यहाँ तक आप लोग को एरेस की समझ आई है या नहीं? परफेक्ट परफेक्ट। बाकी भी बताओ, मनाल, अहमद, रियान, सैफुल्ला। Good, 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 good. This is how you populate. This process is basically known as population of array. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? Population. When you want to fill something, so we call it populate. So population of arrays is basically the sub name of this topic. But at the same time, अगर मैं आपको ये बोलूं कि bro, now I have this array जिसके अंदर है marks. And this basically is an array marks जिसके अंदर let's say x है as count, and this is storing marks of all the students in all 30 students in a class, in a class. अब अगर all 30 students के marks इस array के अंदर पड़े हुए हैं, how do I fetch out the data? हाउ डू आई इंश्योर कि डेटा यार उसके कंप्यूटर या उसके एरे से निकाल के मैं खुद यूज करूं? सो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक लूप कर देता हूं। लेट्स से आई वांट टू ओनली फेच आउट फॉर इंस्टेंस द डेटा ऑफ, मैं बोल देता हूँ कि मुझे पता है कि मास का जो रोल नंबर है दैट इज बेसिकली 27। नाउ आई वांट टू चेक मास इज मार्क्स, सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू, एंड उस न्यू के अंदर आई कैन ऐड दिस मार्क्स, एंड मार्क्स के अंदर लेट्स से पोजीशन नंबर 27 के ऊपर जो भी है that is basically going to get and get fetched to this new variable, and this is how basically how you get data. अब अगर मैं ये बोलूं कि आप इसी को थोड़ा सा एडवांस सा बना लो कि अगर 30 स्टूडेंट्स है, ओह यार हाँ तो बड़ी नींद आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह अहमद यू विल डू वेल। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपने आउटपुट करना है हर बच्चे के मार्क्स, द टास्क इज टू आउटपुट marks of all 30 students, of all 30 स्टूडेंट। तो अब आप किस तरह करोगे? हम वही जैसे पहले एज ऑलवेज हम सबसे पहले लगाएंगे लूप। सही, हमने मेक यूज करना है ऑफ अ लूप, सो आई विल बी लाइक फॉर काउंट कब से कब तक, 1 to 30, और काउंट 1 to 30। आपने एक काम करना है, यू नीड टू बेसिकली आउटपुट स्टूडेंट के मार्क्स, राइट? बट स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ पे स्टोर है? दे आर बेसिकली स्टोर्ड इन एरे नोन एज मार्क्स। सो यू गोना आउटपुट मार्क्स, एंड यहाँ पे आपने उसका बताना है पोजीशन नंबर कि लाइक अगर ये मेरे पास मार्क्स नंबर 1 के अंदर आपने ये स्टोर करना, मार्क्स नंबर 2 के अंदर ये, मार्क 3 में ये, एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे काउंट लिख देंगे, दिस काउंट बेसिकली कम्स फ्रॉम वेयर, दिस काउंट बेसिकली कम्स फ्रॉम हेयर, ये काउंट है तो ये काउंट है। बट नाउ यू माइट बी लाइक सर हमने तो यहाँ पे कोई इनपुट ही नहीं दिया, कि मैं खुद ही भूल गया। सो व्हाट वी कैन डू इज हम थोड़ा सा इसको ना नीचे ले आते हैं, एंड यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज हम इनपुट ले ले, सो लाइक आई कैन डू इनपुट नेम, एंड सो व्हेन आई इनपुट नेम वो हमारे पास उधर आ गया, एंड फिर क्या हुआ, उस नाम को बेसिकली मार्क्स के, बल्कि सॉरी 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 उल्टा कर दिया। नाउ इफ आई वांट टू स्टोर, बल्कि इनपुट क्यों करना है, माय बैड, एक तो मैं लिटरल सो रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मैंने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आउटपुट करने हैं, तो फिर ये सीन होगा, सही है। सो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो वो करेगा क्या, वो सबसे पहले देगा काउंट की वैल्यू 1 है, फिर वो आउटपुट करेगा मार्क्स, किस चीज के मार्क्स, जब आपके काउंट की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। नाउ दिस कैन गो अप टू व्हाटएवर वैल्यू यू आर थिंकिंग। सो हम आखिरी वैल्यू तक इसको ये चलाते जाएंगे, एंड उसके इक्विवेलेंट जो भी मार्क्स के होंगे वो हमारे आउटपुट पे आ जाएंगे। लेकिन वंस यू हैव क्रॉस द रेंज तो फिर आपकी वो लिमिट खत्म हो जाती है, यू आर आउट ऑफ द बॉक्स, सही है। तो ये भी ध्यान में रखना कि if I want to output all the marks of 30 students, so this is how you do it. And this basically kind of explains the whole of 1D arrays. सही है, ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये बेसिकली सिर्फ सिर्फ हमारा है 1D arrays का। अब 1D arrays है क्या चीज? 1D arrays is a kind of data structure
काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या लिख रहा हूँ? डेटा स्ट्रक्चर D 1D arrays is a kind of data structure that stores values of the same time. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई स्पेशल एरे बनाता हूँ, उसके अंदर सिर्फ एक डेटा टाइप की चीज हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि दो हो सकती है, तीन है। एक ही एरे में या नंबर इंटीजर होंगे, या फिर कोई केमिस्ट्री होगी, या फिजिक्स होगी, या कंप्यूटर साइंस होगी। अगर आप एक टाइम में एक से ज्यादा करें तो हम ये बोल दें कि इट इज लिमिटेड ऑफ डेटा। It is kind of a data structure that basically stores values up to the same type. Like अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास एक वो है वेरिएबल जिसके अंदर आपने वैल्यू इनपुट करनी है, व्हेन यू इनपुट द वेरिएबल तो आपके पास कोई ना कोई वो चीजें, हाँ यार मैं सोऊंगा इंशाल्लाह, तो कोई ना कोई चीजें आ जाएंगी। इवन दो आई हैव टू स्टडी राइट नाउ, सो काफी कुक सीन है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट फ्रॉम माय फेस, लेकिन आई एम लिटरली डन, बहुत कर दिया। अब हमें ये तो पता लग गया कि यार 1D एरेस क्या चीज है, उनको किस तरीके से आउटपुट किया जाता है, स्टफ लाइक दैट, किस तरह हम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या, एरेस होते क्या है। तो आप लोग मुझे अभी जल्दी जल्दी ये बता दो, आप लोग को ये एरेस की बात समझ आई है या नहीं? नहीं नहीं, अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम जाएंगे, क्योंकि उसके बगैर आई विल नॉट स्टॉप इंशाल्लाह। मनाल, बाकी सैफुल्ला, रेहान, अहमद, एवरीवन शेयर योर ओपिनियन, आपको ये अच्छे से समझ आई है या नहीं? गुड। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, एक दो ही कराऊंगा, सही है, परफेक्ट। So now let's look at this one question from the May-June 2023 papers. Let me see if I can get an array related question. यहाँ पे तो इसका कोई कोड लिखने का नहीं बोला, but let's kind of make use of some other example. रुको मुझे देखने दो, कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होगी, सही है। नहीं नहीं, पाइथन इज नॉट इन योर सिलेबस, तो अगर ये पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो, इट्स नॉट समथिंग रिक्वायर्ड। मैंने बिल्कुल पाइथन यूज भी नहीं की, इवन दो आई न्यू इट, बट काइंड ऑफ मैंने कभी पाइथन को वो किया नहीं, बट इट इज समथिंग जो कि वो करवाते हैं जस्ट टू इंश्योर कि यार आप क्या कुछ वो समझ आती है नहीं। अब आप ये इसको देखो, वी आर गोइंग टू बी डायरेक्टली राइटिंग द आंसर्स ऑन दिस। आई एम प्रेजेंटिंग दिस सेकेंड विंडो। दिस इज बेसिकली नन अदर देन वेरी वेरी आपका अपना कंप्यूटर साइंस का पेपर, सही है। एंड नहीं नहीं, स्किप ना करो, सीखने का स्किल है तो यू कैन लर्न। नाउ आई वांट यू गाइस टू हैव अ लुक एट दिस, ये लोड होने दो इसको। एंड इसमें अभी आप देखो कि यार आपको आधे से ज्यादा पेपर तो आपका अभी से होने लग गया। लाइक आप यू विल बी शॉक टू रियलाइज कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। लाइक व्हाई नॉट, आप यहाँ पे नीचे जाओ, हमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने एक कोई वो टिक करना है। एंड ये किस चीज के बारे में है? अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या था? समथिंग जो वैल्यू स्टोर करता है but you cannot change. You cannot change. Straightforward. A weather can change. That cannot change. So it's B. मॉड एंड रैंडम अभी हमने कल और आज की क्लास में यही स्टार्ट किए। फिर डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन अ फंक्शन, दिस इज समथिंग जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह, सो अभी के लिए स्किप। एक्सप्लेन व्हाई वेरिफिकेशन चेक्स आर यूज्ड। अगेन वेरिफिकेशन चेक्स क्यों यूज होते हैं? टू इंश्योर जो यूजर मांगना चाहता था, जो इनपुट करना चाहता था, वही चीजें अच्छे से इनपुट हुई हैं या नहीं, कुछ और तो नहीं इनपुट हो गया। फिर दो वेरिफिकेशन चेक उनकी यूजेस, वो हमने जो पढ़े थे वही सेम टू सेम आ गया। आगे आपके क्या है? आपके आगे डिस्क्रिप्शन एंड चेक्स, ये सारे हमने कितने डिटेल में पढ़े थे, इजी फॉर्मा।
Now comes up a very good question. Let's do this. The question says कि यार you need to basically write an algorithm in pseudocode to make sure that an input for the variable length is between 15 and 35. The code must iterate until a valid input has been made and the code must include appropriate message. Iterate का क्या मतलब है कि we need to make use of a loop. So अब हम क्या कर सकते हैं? It needs to run until we have a valid count, right? जब तक हमारे पास valid count आ जाए. So हम क्या करते हैं? Let's make a variable with the name repeat. एंड रिपीट के अंदर मैं क्या करूंगा? रिपीट के अंदर व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले बना दूंगा अपना खूबसूरत किस्म का, इसको हटाते कैसे हैं, ये जगह तो हटती नहीं है, बट व्हाट आई कैन डू इज कि मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि यार लेंथ इसकी आपने सबसे पहले लेना है इनपुट, तो हम यहाँ पे बोल देंगे आउटपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 15 एंड 35। अब आप एक चीज का ख्याल रखना कि जो मैं यहाँ पे जो कोड लिख रहा हूँ ना, काइंड ऑफ ये बेसिकली मैं जो ये सेंटेंस डाला ये इसलिए डाला है क्योंकि इन्होंने क्लियर कट क्वेश्चन में बोला है कि मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मैसेजेस। अगर ना होता तो मैं कभी इसको लाता ही ना डिस्कशन में। अब अगर मैंने ये कर दिया तो नाउ आई विल बी आस्किंग फॉर इनपुट नम, एंड आपने ये रिपीट कब तक करना है? अनटिल योर नम इज बेसिकली लेस देन 15 और योर नम इज greater than 35, and with that your whole loop ends because आपने एक repeat function यूज किया, आपने उसको बोला कि नंबर इनपुट करो, एंड ये तब तक रिपीट होता जाए तक जब तक आपका नंबर 15 से until num is less than, repeat until num is less than 15। हाँ, अब अगर नहीं, until num आपने इसको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका num इस तरह ना हो, माय बैड उल्टा लिख दिया, until your num is basically not less than 35 and also at the same time greater। तो हम इसको और से भी चेंज कर लेते हैं। बेटर idea will be writing it until num is greater than 15 and num is greater than 35। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो या you can also write it the other way कि अगर आपका num greater than वो आ रहा हो या कोई, तो आपने उस सिनेरियो के अंदर भी अपना होगा। कैन वी ऐड समथिंग लाइक ट्राई अगेन? वेल यू डेफिनेटली कैन। अगर आपका until num ट्राई और ये चीजें आ गई ना, तो व्हाट यू कैन डू इज कि हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हो इफ स्टेटमेंट को? कि यार अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें तो आई सी लाइक आई कैन मेक यूज ऑफ एन इफ स्टेटमेंट, जो कि अभी यहाँ पे जगह नहीं है सो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, बट यू कैन डू इट लाइक इफ नंबर is greater than 35 or num is greater than 15, then you basically output not valid, not valid, and फिर आप यहाँ पे कर लो end if ओके। यार मैं सो ही गया था, माय बैड, आई एम लिटरली बस खत्म। लेकिन इतने पता नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट दिस मोमेंट, मैं बिल्कुल बहुत कम सोया हूँ। बट विद दैट अगर हम यहाँ पे एंड इफ लिखते हैं और फिर हमने यहाँ पे नीचे अपने कंडीशंस को भी स्पेसिफाई कर देना है, वी आर गोइंग टू बी राइटिंग अनटिल, एंड अनटिल के बाद मैं क्या लिखूंगा? अनटिल के बाद मैं ये लिखूंगा अनटिल माय वेरिएबल व्हिच इज बेसिकली लेंथ, तो आई कैन टेक इनपुट एज नम या फिर आई कैन आल्सो राइट इट एज लेंथ। सही है, क्योंकि ऊपर इन्होंने क्वेश्चन में लेंथ बोला तो यहाँ पे सब जगह लेंथ। अनटिल माय लेंथ इज बेसिकली व्हाट, it is greater than 35, no sorry, it is greater than 15 and at the same time my length is less than 35। so if both the conditions are being true, so आप loop से निकल जाओ, which means I got the right value। हाँ वही, I get it, बिल्कुल, I am very much sleepy। so ये आप एक हमारे पास हुआ आगे यार। बेसिकली मैंने आप लोग को बोला है ना कि I had a mid today and then I also had kind of a quiz and so I barely slept for like 3-4 hours। एंड सो ये हमारे पास एक वो आ गया, क्या कहते हैं, एक जनरल सा आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। फिर ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको कहता हूँ ना कि लाइक अगर मैंने ये इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि अगर इफ आई हैव टू फाइंड एरर्स, लाइक इजी 4 एरर्स बताने हैं, उनके करेक्शन। एरर के मैंने क्या बताना है? लाइंस बतानी है या बताना है एरर किधर है। एल्गोरिथम हैज बीन written in pseudocode to allow 100 positive numbers to be input, the total and average is to be output। तो मतलब 100 नंबर इनपुट करने एंड 100 नंबर इनपुट करने के बाद उनके एवरेज निकालने एंड उनके सारे सम भी
यार सोने देते हैं, बट आपके बाकी चीजें बहुत ज्यादा हैं, लाइक काइंड ऑफ आपकी बहुत ज्यादा टेस्ट है, आपकी बहुत ज्यादा क्विजेज हैं। आ, तो ये काफी सीन है, सही है। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सबसे पहले करता हूँ कि इसके अंदर क्या एरर होंगे। तो हम इसको अगर थोड़ा गौर फिक्र से देखें, अभी टाइम चलो कम है, लेकिन इसके अंदर आपको 4 एरर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि लाइक अब हमने देख लिया कि काउंटर काउंटर हमें पता है कि जब भी हम काउंट या काउंटर करते हैं वो यूजुअली जीरो से होता है। इस तरीके के एरर्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट्स से हमने ये लिखा कि द एरर इज मे बी काउंटर के अंदर 100 है, एंड द करेक्ट आंसर इसके यार काउंटर के अंदर शायद जीरो। नाउ आई हैवंट रेड इट, आई एम नॉट श्योर दो, बट इस तरीके से आपने अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर अगर आपकी ये थोड़ा सा आपको बता दें कि आप एल्गोरिथम नहीं, लेकिन अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप किस तरीके से करते, तो आप इसके अंदर बता देते कि यार आपकी कोड में ये चीज है, एक आध लाइन आप इस तरह चेंज कर लो तो आपकी ये चीजें इस तरह हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास ये आ गए फ्लो चार्ट, जो कि आपको मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया कि फ्लो चार्ट्स की क्या सिंबल्स है, वही सिंबल्स है, लेकिन उसी को ही थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स सा बना दो। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव अ ट्रेस टेबल। नाउ रिमेंबर मैंने ट्रेस टेबल को बोला था कि हमने किए थे, हमने काफी अच्छे किए थे, वी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एग्जांपल क्योंकि उसके अंदर एरेज आ रहे थे, जिनको हम किसी दिन कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप क्या इसमें कर रहे हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, इन सिंबल्स को समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि मे बी इट इज काइंड ऑफ लाइक फाइंडिंग अ डिवाइजर, या मे बी इट इज काइंड ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर या समथिंग लाइक दैट। सो हमने इस तरीके से फ्लो चार्ट को देखना होता है, हमने देखना होता है इसका पर्पस क्या है। बिकॉज हमेशा आपका फ्लो चार्ट का बी पार्ट जो होता है 2 मार्क्स का, इसके अंदर आपसे पूछते हैं कि यार ये क्या चीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको गौर से पढ़ोगे तो आपको अच्छा खासा समझ आ जाएगा, जो कि अभी भी अगर आप इसको गौर से पढ़ो तो you're going to अंडरस्टैंड कि ये करना क्या चाह रहे हैं, एंड यू कैन लिटरली राइट इट अप हियर। नाउ दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 10, जो कि अभी हमने करना है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग आउट देयर, लॉजिक गेट्स। सही है, लॉजिक गेट्स को छोड़ के फिर हमारे पास एक ये वाली चीज आ गई, दिस इज बेसिकली चैप्टर 8। एंड अब इसका हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया है कि द वेरिएबल सेइंग इज यूज्ड टू स्टोर string data in a program. Write the pseudocode statement to declare the variable. Now, how do you declare? हमने उस दिन पढ़ा है, we make use of the keyword declare, हम declare करते हैं, and declare लिखने के बाद हम क्या करेंगे, we're going to write the name of the variable which is basically saying, and saying की क्या data type है, it is basically string, right? So यहाँ पे हम colon के बाद डाल देंगे string। एंड इसके बाद हमारे पास एक सूडो कोड स्टेटमेंट है, जो कि बेसिकली ये बोल रहा है कि यार आपने अलाउ करना है कि एक स्ट्रिंग इनपुट की जाए, एंड उसको फिर हमने स्टोर करना है एक फाइल के अंदर, जो कि अब ये जो चीज है ना, दिस इज अगेन चैप्टर 8 के जो अगले अपकमिंग क्लासेस है उनके अंदर, सो नॉट कवर्ड येट। बट आप सिर्फ ये देखो कि हमने कितनी क्लासेस ली है, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द होल paper 2 is being already solved. So this is chapter number 9 databases, इसको भी अभी आप skip कर दो। And then finally ये हमारे पास फिर से वो आ गए। Now what is this? This is again chapter 8 का जो हमने अभी तक पढ़ा है। A database use the data, okay, this is again from chapter number 9 क्योंकि database का था तो इसको भी छोड़ दो। So now this is finally हमारे पास 15 मार्क का क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमारे पास वही एरेज यूज हो रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। इट माइट लुक वेरी डॉन्टिंग एट दिस मोमेंट, लेकिन जब हम इस टाइम पे पहुंचेंगे कि हम ये क्वेश्चन को देख रहे होंगे, यू विल बी लाइक इट इज सो इजी। नाउ इफ यू लुक एट दिस, हम हमारे पेपर में कितने क्वेश्चंस है, हमारे पेपर में 11 क्वेश्चंस है। हाउ मेनी ऑफ दोस 11 क्वेश्चंस कैन वी इजीली सॉल्व? 1 2 3 4, then question 5, then question 6, then I see question 7 also. And so apparently we can do 7 out of those 11 questions. So like अभी हमने barely कितना पढ़ा होगा, like maybe 1 week, and I can assure you कि आप लोग 7 out of 11 questions कर सकते हो। Now these 7 out of 11 question is something जिनको अगर आप अच्छे से practice कर लो, तो out of 75 you are already at a stage where you can easily cross 45. सो लाइक जस्ट इमेजिन, अभी तो आपके ना चैप्टर 8 पढ़ा है, ना हम पूरा किए, ना 9 किए, ना 10 किए, एंड यू आर स्टिल एट अ पॉइंट वेयर यू कैन स्कोर अराउंड 40 to 45. So isn't that a very big thing? It's a great deal and it's something you should be happy. Now you open any paper 2 at this moment and you'll be like, okay, I can do at least half of the paper, क्योंकि at least half of the paper में यही लॉजिक यूज की जा रही है। मैं चाहता था कि आप लोग को एक मैं सूडो कोड का कोई इस तरीके से एरे वाला क्वेश्चन दिखा दूं, जो कि हम बना के आपको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। सो दिस इज वन अदर पेपर जिसको हम चेक करें कि अगर इसके अंदर हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो फिर हम इस तरह कर लेंगे कि कल एरेस को हमने, क्योंकि एरे का ये जो अभी हमने पढ़ा है दिस इज 1D एरे। व्हाई इज इट 1D एरे? क्योंकि अगर आप मेरे स्क्रीन को देखो तो मैंने आपको बताया ये एक टेबल बन रही है, जिसके अंदर सबसे नीचे स्मॉलेस्ट है एंड सबसे ऊपर लार्जेस्ट है, एंड एक वैल्यू उसके ऊपर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी। इट्स लाइक अ सिंगल रो, राइट? अ सिंगल रो।
So when we have a single row sort of a table, this is known as 1D array. But it is not कि we are always going to be dealing with 1D array, right? हमारे पास शायद multiple वो भी है, तो वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So now अगर हम यहाँ पे जाए, शायद हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिल जाए एरेस का, अल्लाह करे. बट एरेज अब यूजुअली टेस्ट की जाती है मोस्टली आपके उसमें 15 मार्क का क्वेश्चन में. बट नाउ लेट्स, अगर हम वैसे ही कर रहे हैं, सो हम ये इसका वो कर रहे हैं. सही. दिस इज अ क्वेश्चन जो कि हमने बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो. लाइक जस्ट गिव इट अ रीड एंड यू विल बी लाइक, इसमें सर मुश्किल क्या है, इसमें मुश्किल क्या है, मुझे ये बताओ. आपने करना क्या है, जस्ट रीड इट. द फंक्शन लेंथ कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रेज. सही है. Write the pseudocode statements to store the string ye in a variable known phrase. And then I want you to calculate and output the length of the string. And output the string in uppercase. Now these are all the functions जो मैंने उस दिन पढ़े थे. कौन से? कि हमने length का function एक पढ़ा था. कौन सा हमने पढ़ा था? Length वाला. We studied something with the name length. हमने पढ़ा था length. We also studied uppercase का U case पढ़ा था ना. तो इफ आई वांट टू डू दिस, मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल फ्रेज, उसके अंदर हमने स्टोर करना है इस सेंटेंस को. सो आई कैन डू फ्रेज, आई कैन प्लेस द असाइनमेंट ऑपरेटर, ओपन अप द कोटेशन मार्क्स, एंड इसके अंदर मैं ये लिख लूं, द बिगनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पार्ट, राइट. इजी पीजी, ये लिख दिया, कोटेशन मार्क्स डन. अब क्या करना है, आई नीड टू कैलकुलेट इसकी लेंथ क्या होगी. नाउ लेंथ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वी स्टडीड व्हाट, वी स्टडीड द लेंथ फंक्शन व्हिच वाज बेसिकली आपने लेंथ के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है. इफ आई वांट टू फाइंड द लेंथ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई वो कर देता हूँ, लेंथ str स्ट्रिंग या फिर फ्रेज, इसको ये कोई वेरिएबल अगर मैं बना देता हूँ, अगर मैं कोई वेरिएबल बना देता हूँ, उस वेरिएबल के अंदर मैं इसकी वैल्यू स्टोर करता हूँ, मे बी लाइक दिस के, नहीं अच्छा ये तो हाईलाइटर है, माय बैड. अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लूं कि len लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या करना है, आई डू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड अंदर में क्या डालूंगा, आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस लेंथ फंक्शन, राइट. सो लेंथ, एंड उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, आई एम गोइंग टू ओपन अप द ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैं उस वैल्यू को लिखूंगा जिसकी मुझे लेंथ चाहिए, जो कि इस सिनेरियो में आई कैन काइंड ऑफ राइट दिस होल सेंटेंस, और आई कैन बेसिकली, क्योंकि मैंने फ्रेज के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, व्हिच इज व्हाट, फ्रेज. एंड जो इसकी जो भी लेंथ होगी वो लेंथ स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी. फिर इसने बोला कि आपने इसको आउटपुट करना है, तो मैं इसको आउटपुट कैसे करूंगा, आई विल बी डायरेक्टली लाइक आउटपुट, एंड आउटपुट के बाद मैं इस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, व्हिच इज len स्ट्रिंग. Easy peasy. And finally, मैंने इन्होंने बोला कि आपने आउटपुट कर देना है the string in uppercase. Now, how can I output the string in uppercase? I can do output, and फिर अगर मैंने किसी चीज को अपर केस में करना है तो मैं u case फंक्शन यूज करूंगा. So I can make use of a function like this, output, and I can do u case, and u case के अंदर I can directly write the variable phrase. अब इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता था कि एक मैं वेरिएबल बना देता अपर, उसके अंदर मैं ये सारा फंक्शन करता, उसको आउटपुट करता, एंड जस्ट लाइक दैट जो मैंने ये वाले स्टेटमेंट किए ना, इसको भी मैं आई कैन स्किप दिस. हाउ, आई कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस टू आउटपुट, एंड आउटपुट के अंदर आई कैन डायरेक्टली राइट लेंथ ऑफ फ्रेज. सही. So I can also make use of this specific statement जो कि exactly similar है to this. Now it depends on you. अब यहाँ पे 3 marks है, it's generally advised कि आप ये वाला करें, output ये आपके इसके 3 marks है, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये चीज है. अब इसके अगला पार्ट क्या है, राइट द आउटपुट योर सूडो कोड शुड प्रोड्यूस. क्या इजी पीजी, राइट. आपने सबसे पहले बताना है कि उसके लेंथ कितनी होगी, जो कि हमने पहले कि आप इसको काउंट करें, लेट्स से जो भी आंसर आता है 25 आ गया, वो प्रिंट होगी. फिर अगले लाइन में क्या होगी, आपने अपर केस में ये सारा कर दिया, तो सबको आपने अपर केस में लिख दिया, एंड यू गेट 2 on 2 फॉर लिटरली नथिंग. अब आप मुझे ये बताओ, इज दिस डिफिकल्ट? Is this difficult? It's like so easy to score marks in paper number 2. ये जो 15 मार्क का डर बना हुआ है ना, वो तब होते हैं जब बच्चों से ये वाले क्वेश्चंस नहीं होते. Now I want to ask you one question, like based on these pseudocode questions जो हमने अभी तक देखे हैं generally, जो इससे पहले आप ये देख लो, हमने जो फ्लो चार्ट, चलो फ्लो चार्ट ये देख लो, काइंड ऑफ हमने एरर डिटेक्शन देख लो, इट इज समथिंग वेरी इजी. हमें बताना है कि DIV और राउंड का क्या काम है. DIV प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस द डिवाइजर आंसर.
सही है। एंड राउंड क्या करता है, इट राउंड्स ऑफ योर आंसर, राइट, टू व्हाट, वो आप बता देना कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर 2 लिखते हो तो 2 वगैरह वगैरह वगैरह। सो अब इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। एंड लाइक इवन इफ यू फोकस ऑन इट एट वेरी गुड, विद अ वेरी गुड माइंड, अभी सोकर उठो अच्छे से। एंड ये आपके वही टेस्ट डेटा वाले क्वेश्चंस है कि मतलब आपने बताना है कि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, इसके अंदर नॉर्मल डेटा क्या होगा, विच विल बी रीजन बिकॉज इट शुड बी एक्सेप्टेड। एबनॉर्मल क्या होगा जो कि रिजेक्ट होना चाहिए, 27 लेट्स से, तो इट शुड बी रिजेक्टेड आउट ऑफ बाउंड। एक्सट्रीम जो कि बिल्कुल एचपीओ में भी 30 से 70 के दरमियान एक्सेप्टेड है, तो 30-70 एक्सट्रीम। तो इस तरीके से बड़े बड़े बेसिक से सवाल आते हैं जिनको अगर आप अभी भी करने बैठ जाओ ना, तो लाइक अगर हम P1 को देखें तो आपके P1 के अंदर यू शुड बी एमिंग फॉर अ 65 प्लस एटलीस्ट इंशाल्लाह, सही है। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर अक्टूबर नवंबर एग्जाम्स, तो अभी तो आपने इंश्योर करना है कि इसको आप जितना हाई कर सको। एंड फिर आपके पास आ गया पेपर 2, जिसके अंदर अभी जो हमने कोई कोर्स, हमारा तकरीबन आधा पेपर 2 रहता है, बट स्टिल यू कैन स्कोर अराउंड अबाउट 45 मार्क्स विद फोकस। एंड अगर आपने जितना अभी तक सीखा है ना, इसको अगर आप 15 मार्कर में भी अप्लाई करने लग जाओ, यू कैन गेट लाइक एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 15 मार्क्स। सो अगर हम इसको देखें, you are already at a score of 110 marks, and this can literally get you an A, which is basically even when you have not done 50% of paper number 2. So you should be very much happy कि आपके जो अभी तक बेसिक्स बनाए जा रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं ये स्लो स्लो फोकस कर रहा हूँ ना कि आपके बेस बिल्डअप हो, उसकी वजह यही है कि अगर आपके जब तक ये बेसिक्स प्रोग्रामिंग के नहीं क्लियर होंगे ना, आप कभी 15 मार्कर में नहीं पहुंचोगे। सो नाउ माय फाइनल क्वेश्चन बिफोर एंडिंग टुडेस क्लास इज कि आप मुझे सब ये बता दो जो हमने आज डिटेल में 1D एरेस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने बताया कि किस तरीके से 1D एरेस के अंदर आप उसको अंदर डेटा डाल सकते हैं, किस तरीके से उससे डेटा आप आउटपुट कर सकते हैं। अब आउटपुट मार्क्स नहीं करना, माय बैड, ये मैंने गलत कर दिया। इट्स लाइक दिस, आउटपुट मार्क कंटेंट, एंड देन यहाँ पे आप क्या लिख दो, नेक्स्ट काउंट। तो अगर हम इसको आउटपुट कैसे करते हैं, इसके अंदर डेटा डालते किस तरह है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक 1D एरे होता क्या है, अगर ये आप लोग को अच्छे से समझ आ गया, तो कैन यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि यू गाइस आर फुली कॉन्फिडेंट एटलीस्ट जो हमने आज पढ़ा है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं, ये क्या चीज हो रही है, ये अगर आप लोग को समझ आ गई तो वेल एंड गुड, मुझे बता दो। कल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी, इसी को हम फिर से रिवाइज करके हम आगे जाएंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट। सो इसके ऊपर अगर एक आध दिन लग भी जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। आज जो हमने ये पढ़ा है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड टू 1D एरे। कल हम 1D एरे और इसी के साथ हम 2D एरेस को भी पढ़ेंगे ताकि हमारे थोड़ा और बेहतर वो हो जाए। लेकिन नाउ ऑल ऑफ यू, मनाल, सैफुल्लाह अहमद, रेहान ने तो बता दिया 1D array clear or not. Sir, can you suggest a technique of preparing the previous chapters we did? Okay, of course, why not? So to prepare for those previous chapters, what I want you to do is, okay, that's a pretty good question too, by the way. You should start off, okay, if you were kind of making notes, so well and good. If not, तो यहाँ पे लिख भी दे दूँ preparing for P1, सही है, preparing for P1. So what I will advise you is कि अगर आपके notes बने हुए, so start revising your notes, revise your notes सबसे पहले। अगर आपके notes नहीं बने हुए तो just open up the notes which I shared, my digital notes, आप उनको देखो। आप देखो आपको हर कॉन्सेप्ट की समझ आ रही है, जो हमने पढ़ा है समझ आ रही है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह समझ नहीं आ रही, वॉच दैट वीडियो अगेन, से इंश्योर कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप ये दो स्टेप कर लेना, कोई नहीं, अगर ये मैं अभी आप लोग दिसंबर मॉक्स में होंगे ना, लाइक अहमद आपके मॉक्स होंगे दिसंबर के अंदर, राइट। सो आपने अगर दिसंबर के लिए अभी से तैयारी करनी है तो आप एक टॉपिक के अंदर इसके नोट्स और वीडियो देखने के ऊपर कोई नहीं 2 दिन लगा लो, 2 डेज लगा लो, या मे बी 3 डेज लगा लो, कोई मसले की बात नहीं। फिर एक दफा जब आपकी ये दो हो जाए ना, तो यू नीड टू डायरेक्टली शिफ्ट टू टॉपिकल्स। आपने टॉपिकल्स के अंदर इंश्योर करना है कि यू डू एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस। व्हेन यू डू 10 to 15 क्वेश्चंस, दिस इज द वेरी आइडियल अमाउंट टू इंश्योर कि आपके क्वेश्चंस आपके जहन के अंदर अच्छे से बैठ जाए। एंड फिर उसके बाद जब आपकी ये टॉपिकल्स 10 से 15 क्वेश्चन का हो जाए, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू रिपीट फॉर द अदर चैप्टर्स, तो अगर अभी आप लोग स्कूल के उसमें भी बिजी हो, स्टाफ सब कुछ के अंदर, तो आई विल एडवाइज यू कि यार ट्राई टू इंश्योर कि आपका ये सारा का सारा ना एटलीस्ट 6-7 डेज में हो रहा हो। अगर आप एक हफ्ते में एक टॉपिक को भी प्रॉपरली वो प्रिपेयर कर रहे हो ना, सो लाइक लिटरली इन 6 वीक्स, विच इज बेयरली व्हाट 1.5 मंथ,
In 1.5 months you will be fully prepared for your paper 1, अगर आप अभी भी बिल्कुल स्टार्ट से वो करते हो. At the same time आप recordings को भी देखते जाओ. Whatever mid chapters are more, oh don't worry, अगर mid October तक है इंशाल्लाह your chapter 7 and 8 वो मैं आप लोग को फुल प्रैक्टिस करा के गुड सीन करा के इंशाल्लाह बाय 8 बोलूं बाय 3rd 4th October खत्म करवा दूंगा. फिर उसके बाद यू शुड डायरेक्टली गो डू टॉपिकल क्वेश्चंस. एंड अगर वो टुवर्ड्स 15th October के बाद हो रहा हो, सो 15 October के बाद हम वैसे भी पेपर 2 की प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि द कोर्स इज इंशाल्लाह गोइंग टू बी एंडेड बाय मिड ऑफ October 15 16 17 तक इंशाल्लाह. तो उसी साथ साथ आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर योर ग्रैंड टेस्ट या व्हाटएवर मिड यू हैव और स्टफ लाइक दैट. सो ये आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है. एंड इफ यू आर समवन हु इज गोइंग फॉर द October November एग्जाम, तो अक्टूबर नवंबर एग्जाम्स के लिए आपके अभी तक यू शुड हैव स्टार्टेड P1 प्रैक्टिस. नहीं स्टार्ट की तो मेक श्योर कि यू डू एटलीस्ट 1 to 2 पास्ट पेपर्स एवरी डे. उसको खुद मार्क करो, एनालाइज द मार्क स्कीम एंड लर्न एवरीथिंग. एंड उसके साथ साथ जैसे हम P2 का, जैसे वी आर डन विद चैप्टर 7, आपने देख लिया कि वी कैन डू ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेपर, राइट. हम 50% कर सकते हैं. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. Start practicing this. The moment we are done with like chapter number 8 and मैं आप लोग को बोल दूं कि आप सारे सूडो कोड के कर सकते हैं, you will be able to solve 70% of the paper, क्योंकि वो 70% आपका चैप्टर 7 और 8 के ऊपर ही है. एंड बस आपने वो कर देना है. साथ पे साथ जब मैं 15th या 16th ऑक्ट तक इंशाल्लाह हमारे चैप्टर 9 और 10 हो जाए, तो आप उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में ना हो कि आपको चैप्टर 7 और 8 या P1 रिवाइज करने की जरूरत पड़े. आपकी ये तीनों इतने स्ट्रांग हो कि यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 120 आउट ऑफ 150 इंशाल्लाह. एंड फिर आपके पास जो रिमेनिंग CIs के अंदर आपके पास 8 to 10 डेज है, उसके अंदर उनके एक एक पेपर आप करते जाओ एंड इसके भी आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट हो जाओ. तो बाय द टाइम यू हैव योर CIs you will be fully prepared for your perfect exam. No, we do have 2 students. We have Saifullah Atiq and we have one other student. वो दो जो है ना उनने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने हैं. सो अभी एट दिस मोमेंट क्लास में नहीं है, बट क्योंकि वो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, सो इस वजह से वी डू हैव 2 स्टूडेंट्स. सो उसके लिए सो दिस शुड बी योर रोड मैप for preparing the whole of the thing. For the May June schedules, 15th October के बाद से इंशाल्लाह we are going to be having past papers till 1st of November to ensure कि आप लोग को अच्छे से practice हो जाए for both P1 and P2. So with that, I'll be ending the recording. सही है. I hope आप लोग को अच्छे से समझ आ गई हो what we studied. And with that, everybody, it's 10:15. आप लोग कोशिश करो कि आप exactly 9 पे पहुंच जाया करो ताकि हम अच्छे से सब कुछ टाइम पे कर ले. ओके. सो यार लेट्स सी, आई विल हैव टू सी कि मैं क्या करता हूँ. अभी बड़े काम करने भाई, बड़े काम करने, बट आई होप आई स्लीप. चलो एवरीबॉडी गाइस, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.